Hello everyone, here we are with General Training IELTS Important Essays for 2024. We will discuss these essays. Some companies have a policy of employing people from different age group. Do the advantages outweigh the disadvantages? गाइस देखिए, अलग अलग एज ग्रुप के बंदे अगर हायर करेगी कंपनी तो उनको फायदे ज्यादा होंगे ना कि नुकसान. इससे एक तो एक्सपर्टीज मिलेगी, डिफरेंट एज ग्रुप्स के डिफरेंट स्किल्स होंगे rather than keeping a one age group. Next one is nowadays many people spend their free time watching movies. Why do they do that? Is it a positive or negative development? Thanks to OTT platforms, I think many people are watching series and movies these days in their free time. क्यों करते हैं? Of course, because उन्हें break चाहिए अपनी monotonous routine से. It gives them entertainment. It is a positive development. There is no harm, but if they are spending too much time, it will be negative for them. Otherwise, there is no harm if they are spending their free time in watching movies. Next topic is nowadays, but guys, हम पिछले topic में ये भी कह सकते हैं कि they can do other activities rather than only watching movies. They can do some leisure time activities where they can use like physical, you can say for the physical fitness and all. They can go for sports and all. It's your opinion because there is no right or wrong opinion in IELTS. Next one is nowadays, may people travel to other countries for holidays. Why do people want to do so? Is it a positive or negative trend for countries they travel to? गाइज अभी क्या हो गया, काफी लोग हॉलीडेज में दूसरे शहरों की बजाय दूसरे देशों में जाते हैं. तो क्यों लोग जाते हैं? ऑफ कोर्स एक्सप्लोर करने, नई जगह की ब्यूटी देखने, कल्चर एक्सप्लोर करने. इज इट अ नेगेटिव और पॉजिटिव फॉर द कंट्री दे ट्रेवल टू? आई थिंक इट इज पॉजिटिव, क्योंकि कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है टूरिज्म से, इकोनॉमी बूस्ट होती है. नेगेटिव बस हम ये कह सकते हैं कि समटाइम इट लीड्स टू टू मैनी tourists, that the country faces problems in handling them, and sometimes it leads to some conflicts. Otherwise, overall, it's a positive trend. Next one is, some people believe that the local news is more important than international news, while others argue that news from around the world has more significance. Discuss both views and give your opinion. अभी टॉपिक क्या है कि जो लोकल न्यूज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि अंतर्राष्ट्रीय. कुछ कहते हैं कि सारी दुनिया की खबरों का ही सिग्निफिकेंस है. आपको क्या लगता है? बोथ व्यूज है गाइस, तो आपको दोनों बताने हैं. लोकल का इसलिए क्योंकि आपको अफेक्ट करती है डायरेक्टली, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल भी जाननी. लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, तो ऑफकोर्स दुनिया में क्या हो रहा है वो भी. तो दोनों तरफ के अपने अपने बेनिफिट है. तो ओवरऑल हम ये कहेंगे लोकल के साथ साथ हमें इंटरनेशनल न्यूज़ भी पता होनी चाहिए. Next one is, some people think students should volunteer to do unpaid work to benefit the community. क्या कह रहे हैं कुछ लोग के स्टूडेंट्स को वॉलंटियर अनपेड वर्क करना चाहिए जो फायदेमंद होगा कम्युनिटी के लिए. आप क्या कहते हो? ये सही है या डिसएग्री करते हो? अग्री. गैस इसमें देखिए क्या है, अगर तो वो अपने फ्री टाइम में कर रहे हैं कोई अनपेड वर्क, देर इज नो हार्म. दे गेट एक्सपीरियंस, they get knowledge, but and there is no harm in volunteering. But their main focus has to be on studies. So you can say there is no harm if they are doing unpaid community work in their free time, but more focus should be on the studies. Next one is, in many countries it is mandatory for school children to wear uniforms. इसके फायदे हैं या नुकसान है? क्योंकि यूनिफॉर्म है गाइस, अगर आप देखें सब कंट्रीज में ऑलमोस्ट है ये कि यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी स्कूल चिल्ड्रन को. इसके फायदे क्या है? तो आपको ये वो देता है, आइडेंटिटी देता है, वे यू बिलोंग टू, और आप सिमिलैरिटी भी देता है. आई थिंक इसके फायदे ज़्यादा हैं यूनिफॉर्म के. Next one is, nowadays governments in many countries spend a lot of money on works of art such as painting to be displayed in public places. क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है गाइस? कई क्या हो रहा है, कहते हैं गवर्नमेंट जो है स्पेंड कर रही है पेंटिंग्स. आपने देखा होगा पब्लिक प्लेसेस पे कितनी पेंटिंग्स लग रही हैं, कितना पेंट कराते हैं, वॉल पेंट्स वगैरह कराती है गवर्नमेंट. क्या ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये आई थिंक फॉर आर्टिस्ट इट इज़ वेरी पॉजिटिव, बट लिमिटेड अमाउंट शुड बी स्पेंट ऑन these. Otherwise it is positive because the artists, they get opportunities to show their skills, their art. Next one is, some people believe students should learn cooking at school, while others believe this is a waste of school time. Discuss both views. गाइस देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि कुकिंग स्कूल में ही सिखाई जाए, दूसरे कहते हैं ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा क्योंकि स्कूल में और करिकुलम है. तो आप क्या कहते हो? तो इसमें आप कह सकते हो कि इट्स टू समटाइम, स्पेशली टू यंग चिल्ड्रन, इट्स टू अर्ली. I think they should focus more on studies and art rather than on cooking. They can learn it later.
so it can be mandatory or they can learn later in the classes rather than the primary school. So they should focus more on studies them that time. Guys, next topic is some individuals argue that children should always heed the advice given by their parents, while others believe that children should make decisions independently. Discuss both views. अब both views है, otherwise देखिए उसने क्या बोला है, बच्चों को हमेशा टेंशन पे करनी चाहिए जो एडवाइस उनके पेरेंट्स देते हैं, दूसरे कहते हैं वो खुद से डिसीजन मेक करें. तो ओवरऑल मुझे लगता है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, तो लेकिन एंड में अगर हम देखें दे शुड टेक देयर डिसीजंस इंडिपेंडेंटली along with the advice of their parents. That would be, I think, best for them. That would be best idea. Nowadays, people take photographs and record videos of their social activities. Why are they doing this? What are the advantages? Guys, आपको पता है हर जगह हम जाते हैं, हम जनरली एंजॉय करने की बजाय फोटोग्राफ्स ही खींचते रहते हैं. कहीं भी हम जाते हैं पहले हमें पोस्ट डालनी है कि हम यहाँ गए हुए हैं, ये खा रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो ये ट्रेंडी हो गया है थैंक्स टू सोशल मीडिया. तो क्यों करते हैं हम? ऑफ कोर्स हम लोगों को दिखाना भी चाहते हैं और लोगों से कनेक्ट भी रहना चाहते हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, और हम मेमोरीज भी रखना चाहते हैं वीडियोस और फोटोग्राफ्स के जरिए. इसके फायदे भी है, नुकसान भी है. फायदे तो देखो है ही, हम मेमोरीज को चेरिश कर सकते हैं लेटर ऑन, हम बता सकते हैं व्हाट वी आर डूइंग, एक रिकॉर्ड रख सकते हैं अपनी एक्टिविटीज का. लेकिन अगर हम डिसएडवांटेज देखें, सम टाइम वी डोंट एंजॉय द मोमेंट, वी एंजॉय द एक्टिविटीज, वी जस्ट फोकस ऑन द फोटोग्राफी एंड दैट्स नॉट गुड. Some countries allow teenagers to have a part-time job. Some people think this is good idea while others disagree. Guys, कुछ countries में क्या है कि teenager part-time job कर सकते हैं. आपने देखा होगा बाहर की countries में तो है ही है. कुछ लोग सोचते हैं जी अच्छा आइडिया है, कुछ कहते हैं नहीं उन्हें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, पार्ट टाइम जॉब्स पे नहीं. आपको क्या लगता है? दोनों तरफ ठीक है गाइस, पढ़ाई पे भी करना चाहिए क्योंकि एक बार जॉब्स करने लगे फिर पढ़ाई की वैल्यू कम हो जाती है, बंदा सोचता है काम ही कर लें. दूसरी तरफ जब अगर वो काम करते हैं, उन्हें एक्सपोजर होता है, वो एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी स्किल उनके लिए सही है, कौन सा फील्ड उनके लिए सही है, कौन सी स्किल को वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन सी फील्ड वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो इट्स काइंड ऑफ बोथ वे, इट्स गुड. तो आप दोनों व्यूज डिस्कस कर सकते हैं. Next topic is some people think that in order to be successful in business one has to study at university while others disagree. Discuss both views and give your opinion. कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, दूसरे कहते हैं नहीं. गाइस देखिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने से ऑफ कोर्स हमें वो एक्सपर्टीज आती है, हमारा स्किल इंप्रूव होता है, बट आपने देखा होगा कितने बिजनेसमैन सक्सेसफुल है जो ड्रॉप आउट भी थे. तो इसमें तो आप डिसएग्री भी कर सकते हैं. तो पहले आपने वैल्यू बताना है कि क्या यूज है, कि कैसे एक्सपर्टीज होती है, कैसे आप एक मेजर लेते हो यूनिवर्सिटी में, कैसे स्किल इंप्रूव होती है, कैसे आप पढ़ते हो, एक्सप्लोर करते हो चीजें. दूसरी तरफ आप कह सकते हो कि ऐसा नहीं है, बिजनेस के लिए जो स्किल्स चाहिए कई बार सम पीपल लर्न फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, और तो फिर वो आप उसका भी कर सकते हो एक्सप्लेन. तो आप बता सकते हो कि इट इज नॉट मैंडेटरी दैट वन हैज टू study at university. Next one is some people think that the best way to relax is by resting or sleeping, while other think doing exercise or playing sports is better. Guys, इसमें भी discuss both views ही है. कुछ लोगों को लगता है सोने से और रेस्ट करने से ही उनकी बॉडी रिलैक्स होती है, कुछ कहते हैं एक्सरसाइज करने से, स्पोर्ट्स खेलने से. तो दोनों के आपने फायदे नुकसान बता के एंड में अपना व्यू देना होता है. नेक्स्ट वन इज इन मेनी कंट्रीज यंग पीपल लीव their parents home in early 20s and go on to live on their own, while others prefer to stay with their families at later age. Do you think advantages of young people living with their parents for longer outweigh the disadvantages? Guys, उसने क्या बोला है कि कुछ लोग यंग पीपल अपने माँ बाप को छोड़ के अर्ली 20s में ही अलग से रहने लग जाते हैं, दूसरे लेट भी अपने पेरेंट्स के रहते हैं जैसे इंडिया में होता है. आपको क्या लगता है कि जो यंग पीपल है उनके जो पेरेंट्स के साथ रहते हैं ज्यादा, वो उसके फायदे ज्यादा या नुकसान है? तो आप दोनों तरफ बता सकते हैं कि फायदे कितने हैं. उनको फाइनेंशियली जब उनको क्राइसिस आते हैं दे आर देयर, फिजिकली वो हेल्प करते हैं अगर इफ दे फॉल इल, अकेले रहने में ये होता है. तो आप सारे बेनिफिट्स भी बता सकते हैं. हाँ, थोड़ी इंडिपेंडेंस कम होती है तो आपने डिसएडवांटेजेस भी थोड़े से जिक्र करने हैं. तो बताना है कि ओवरऑल एडवांटेजेस ज्यादा है पेरेंट्स के साथ रहने से क्योंकि सपोर्ट भी होती है. Guys, next topic is these days many people prefer to work longer hour and spend less time at home. इसके फायदे हैं नुकसान है. आजकल लोग काम ज्यादा करते हैं, घर पे कम रहते हैं, इसके फायदे हैं नुकसान है, तो आपने बताना है. इसके सिर्फ अगर हम देखें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में फायदे हो सकते हैं, वैसे पर्सनल लाइफ में नहीं. तो वी शुड स्पेंड इक्वल टाइम एट होम एज वेल.
तो आपने इसका बताना है कि इसके फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान है. इट इज़ समटाइम्स सेड दैट मॉडर्न टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स पीपल मोर फ्री टाइम. However, some people say instead technology is making people more busier. गाइस सी देखिए क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी से हमें काम हमें इजीली हो जाता है हमारा, तो हमारे पास और फ्री टाइम होता है, लेकिन फ्री टाइम भी हम टेक्नोलॉजी पे ही स्पेंड कर रहे हैं. तो फिर तो आप दोनों चीजें बता सकते हैं कि कैसे इसने बिजी कैसे कर दिया, हम टेक्नोलॉजी पे ही अपना फ्री टाइम लगा रहे हैं क्योंकि वी आर यूजिंग फोन, लैपटॉप्स, watching TV, watching playing games. So discuss both views and give your opinion. तो आपने बताना है कि कैसे. Next topic is some people say that schools should invest in best equipment for students while others say funds should be used towards hiring great teacher. Discuss both guys. This is also very interesting. कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल बच्चों के लिए बेस्ट इक्विपमेंट पे पैसे लगाए, दूसरे कहते हैं वो पैसा यूज किया जाए अच्छे अच्छे बढ़िया टीचर को हायर करने में. देखिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट्स भी टीचर्स भी. तो आपने बताना है कि अगर हायर करते टीचर उससे क्या बेनिफिट होंगे, इक्विपमेंट से क्या फायदे होंगे, फिर आपको अपना ओपिनियन देना है कि दोनों पे स्पेंड करें ना इक्वली. आई थिंक next one is some people think visiting museums is best way for children to learn history while many think that there are better other ways. Means अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री सीखनी है वो म्यूजियम्स जाए, दूसरे कहते हैं बहुत और तरीके हैं, आप ऑडियो विजुअल एड्स यूज करके क्लास में बुक्स यूज करके भी सिखा सकते हैं. तो आपने दोनों के फायदे बताना है, विजिट करके हम कैसे लर्न करते हैं प्रैक्टिकली, दूसरे कैसे, और दोनों का मिक्सचर कैसे फायदेमंद रहेगा, या अगर हम बिना विजिट किए भी लर्न कर सकते हैं या फिर विजिट करके ही. तो आपकी अपना ओपिनियन होगा इसमें. फास्ट फूड इज बिकमिंग पार्ट ऑफ लाइफ एवरीवेयर विच नेगेटिवली affects our lifestyles and diet. Do you agree, disagree? Give reasons. फास्ट फूड हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, हमें भी पता है वो नेगेटिव ही अफेक्ट कर रहा है. तो आपको क्या लगता है? यस ऑफ कोर्स इट इज अफेक्टिंग अस नेगेटिवली. फिर बताना है क्यों हम फास्ट फूड पे रिलाई कर गए, क्यों हमें ये मुश्किल हो रहा है. Part-time courses are on the rise and students are taking them up as an alternative to full-time courses. Do the advantages outweigh the disadvantages? Guys देखिए आजकल लोग ना पार्ट टाइम कोर्सेज करते हैं क्योंकि वो यूज कर लेते हैं वो टाइम कहीं और वो फुल टाइम नहीं कर रहे क्योंकि वो सोचते हैं कि कोई और काम भी कर लेंगे, कुछ और भी कर लेंगे. इसके फायदे हैं नुकसान है, ये आपको बताना है. तो आप दोनों तरफ आप, इट्स योर व्यू whether you think it's beneficial or not. Some people think it's better to make more money rather than having a free time, while other prefer to have more free time than making money. Guys फिर से डिस्कस बहुत ही आया ये. कुछ लोग कहते हैं कि फ्री टाइम की बजाय हम पैसा ही कमा लें, मतलब जितना हमारे पास टाइम हम पैसे के लिए यूज कर लें, पैसा कमाने के लिए. दूसरे कहते हैं हमारे पास फ्री टाइम भी होना चाहिए, सिर्फ पैसा पैसा नहीं. तो दोनों व्यूज आपने डिस्कस करके अपना व्यू देना है. Some people think that water is the most important natural source, while others believe that other resources such as oil and gold are more important. Discuss both. Again, discuss both. कुछ लोग कहते हैं कि पानी ही सबसे बड़ा कुदरती हमारा जो है स्रोत है, और दूसरे कहते हैं कि तेल सोना भी है. तो आपने बताना है कि पानी का क्या बेनिफिट है, ऑयल और गोल्ड का कैसे है. तो डिस्कस बोथ व्यूज और ओपिनियन देना है. मुझे लगता है ऑयल का तो पानी के से भी ज्यादा, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, पानी जितना ही हो गया है. कैन वी सर्वाइव विदाउट ऑयल नाउ? फ्यूल. Guys, next topic is some people say no one should work after the age of 50 or 55. Others say that anyone should be able to continue working as long as they wish. Discuss both views. Guys, ये काफी टाइम से ही रहा है ये टॉपिक. अब देखिए अगर somebody is healthy at say 55, 65, 75, they can work. और तो ये तो आपका अपना ओपिनियन है. एक सर्टन एज देखिए रिटायरमेंट की तो फिक्स है, हमें भी पता है 65, 55 whatever depend on countries. लेकिन दूसरे कहते हैं कि कभी भी काम कर लो as long as they wish. I think ये अगर हम सर्टन जॉब्स का करें वहां पे तो एक सर्टन उन्होंने पीरियड रखा ही हुआ है कि इतने टाइम तक ही कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बिजनेस देखें वहां तो लोग 80, 85 के भी कर ही रहे हैं. तो आई थिंक ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए कि if somebody is healthy and they can work efficiently, the age should not be considered. They can work as long as they can. More and more people participate in extreme sports. आजकल लोगों को बहुत एडवेंचरस हो गए हैं लोग, एडवेंचर का शौक है. Why do people take part in these sports and what can be done to reduce the danger? Danger हम reduce इसलिए कर सकते हैं कि safety measures हो. बंजी जंपिंग कर रहे हैं लोग, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं लोग, स्काई डाइविंग कर रहे हैं, बुल फाइटिंग. देयर आर सो मेनी एक्सट्रीम स्पोर्ट जिसमें लोग इंडल्ज होते हैं. क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि उनकी नेचर है, दे लव टू
take participation in these kind of dangerous activities. They love taking risk. लेकिन रिड्यूस कर सकते हैं हम डेंजर, क्योंकि डेंजर तो देखो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेफ्टी मेजर. So guys, these are the topics which you can prepare for 2024 IELTS general training exams. Thank you.